آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ مہاراشٹر کابینہ نے کیے کئی اہم فیصلے، آبی ذخائر، کسانوں کے لیے راحت کاری اور بنیادی ڈھانچے کے لیے بڑے منصوبوں کو دکھائی ہری جھنڈی۔ پانی کے لیے شہر میں مچنے لگا ہاہاکار، قلت پر قابو پانے میئر نے بلائی اہم میٹنگ۔ 900 ملی میٹر قطر والی پائپ لائن پوری صلاحیت سے چلانے کا دیا حکم، بجلی کی آنکھ منچلی پر قابو پانے بھی دی گئی سخت ہدایات۔ سڑک حادثات پر قابو پانے ڈسٹرکٹ روڈ سیفٹی کمیٹی کی اہم میٹنگ منعقد، روڈ سیفٹی کے لیے بنایا گیا بڑا ایکشن پلان، بلیک اسپاٹ ختم کرنے اور جدید نگرانی نظام نصب کرنے کا متعلقہ افسران کو ضلع کلکٹر ونے گوڑا نے دیا حکم۔ اور جائیکواڑی ڈیم میں تیزی سے کم ہونے لگی ہے پانی کی سطح، بخاراتی عمل ہوا تیز اور پانی کے استعمال میں بھی ہوا اضافہ، مگر اطمینان بخش مقدار میں موجود ہے پانی کا ذخیرہ، انتظامیہ اور عوام سے پانی کے استعمال میں کفایت کرنے کی گئی اپیل۔ خبریں تفصیل سے۔ کابینی اجلاس میں آج کئی اہم منصوبوں کو منظوری دی گئی، جن میں آبی ذخائر کی صفائی، کسانوں کے لیے راحتی پروگرام اور تعلیمی و طبی شعبوں میں ترقی کے ساتھ ساتھ دیگر کئی اہم منصوبے شامل ہیں۔ کابینی اجلاس میں ریاست بھر میں موجود آبی ذخائر سے گال اور گال ملی ریت نکالنے کی نظر ثانی شدہ پالیسی کو منظوری دی گئی۔ ابتدائی مرحلے میں 6 بڑے منصوبوں میں تجرباتی بنیاد پر یہ کام کیا جائے گا، جس سے آبی ذخیرہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ کسانوں کو زرخیز گال بھی دستیاب ہوگا اور ڈیموں کے تحفظ میں مدد ملے گی۔ ناسک ضلع کے امبولی ویلنجے فلو ڈائیورژن پروجیکٹ کے لیے 49 کروڑ 26 لاکھ روپے کی مالی امداد کو منظوری دی گئی۔ سندھو درگ اور رتنا گری اضلاع کے لیے سندھو رتن سمردھی یوجنا 2 کو مزید 3 برس تک جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا، تاکہ قدرتی وسائل کے مؤثر استعمال سے ضلع کی ہمہ جہت ترقی ممکن ہو سکے۔ ریزرو زمرے کے ایسے امیدوار جنہیں عمر، تعلیمی قابلیت یا امتحان میں اضافی مواقع کی رعایت دی گئی ہے، اب ان کی تقرری صرف محفوظ زمرے میں ہی ہوگی اور وہ اوپن کیٹیگری کی نشست پر دعویٰ نہیں کر سکیں گے۔ نجی امدادی رہائشی ہائر سیکنڈری آشرم اسکولوں کے اساتذہ کو 12 اور 24 سال کی ملازمت کے بعد چٹوپادھیائے کمیشن کے مطابق سینئر اور سلیکشن گریڈ دینے کو منظوری دی گئی۔ ناسک رنگ روڈ پروجیکٹ کے لیے زمین خریداری پر اسٹیمپ ڈیوٹی میں رعایت دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ مٹی و آبی تحفظ محکمے کے نئے تنظیمی ڈھانچے کو منظوری دیتے ہوئے تقریباً 8766 عہدوں کو منظوری دی گئی ہے۔ پونے میونسپل کارپوریشن کے مولا مٹھا ندی بحالی پروجیکٹ کے لیے 3 سرکاری زمینیں مفت منتقل کی جائیں گی، تاکہ ندی کی ترقی کا منصوبہ مکمل کیا جا سکے۔ بنگلہ دیش کو برآمد ہونے والے سنتروں پر دی جانے والی 50% درآمدی ڈیوٹی سبسڈی اسکیم ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ اس سے ریاست کے کسانوں کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ طبی اداروں کی عمارتوں کے لیے ڈیولپمنٹ فیس میں 50% رعایت دی جائے گی، جو پہلے 25% تھی۔ اسی طرح مہاراشٹر اسٹیٹ شیڈول ٹرائب کمیشن اور شیڈول کاسٹ کمیشن ایکٹ 2025 میں ترمیم کرتے ہوئے دونوں کمیشنوں کے لیے نائب صدر کے نئے عہدے قائم کرنے کو بھی منظوری دی گئی۔ لاسور ایگریکلچر پروڈکٹ مارکیٹ کمیٹی میں پیاز کو 1 روپیہ فی کلو کے حساب سے قیمت ملنے پر کسانوں میں شدید ناراضگی پائی گئی اور ان لوگوں نے مارکیٹ کمیٹی کے داخلی دروازے پر ہی پیاز پھینک کر اپنا احتجاج درج کروایا اور حکومت سے توجہ اور انصاف کا مطالبہ کیا۔ لاسور مارکیٹ کمیٹی میں آج پیاز کی پیداوار کرنے والے کسانوں کا شدید غصہ دیکھنے کو ملا۔ بازار میں پیاز کو محض 1 روپیہ فی کلو کی انتہائی کم قیمت ملنے پر کسانوں نے اپنی پیاز بازار سمیتی کے مرکزی گیٹ پر پھینک کر احتجاج درج کروایا۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ یہ بیج، کھاد، دوائیں، مزدوری اور ٹرانسپورٹ کے اخراجات میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، لیکن
پیاز کی قیمت انتہائی کم مل رہی ہے۔ اس وجہ سے پیاز فروخت کرنے کے باوجود پیداواری لاگت بھی پوری نہیں ہو پا رہی ہے، جس پر کسانوں نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ احتجاج کرنے والے کسانوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر بازار بھاؤ مستحکم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں اور پیاز پیدا کرنے والے کسانوں کو راحت فراہم کروائی جائے۔ क्विंटल अच्छा कांदा बघा आम्हाला खूप राहिलं कारण आमच्या कांद्याला भाव नाही भाड्याने ट्रॅक्टर आणले किती आधी भाडंही कोणी द्यावं खर्च तर राहायला बाजूला पण ट्रॅक्टरचं भाडं नाही गेलं ना काय करणार मग त्याला 2000 रुपये भाडं येते ट्रॅक्टरमध्ये। जालना म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने मानसून से कबल शहर से गुजरने वाले 64 नालों की सफाई का काम जंगी पैमाने पर शुरू कर दिया है। इंतज़ामिया के मुताबिक अब तक 10 नालों की सफाई का काम मुकम्मल किया जा चुका है, जबकि बाकी मानदार नालों की सफाई भी मानसून के आगाज़ से पहले ही मुकम्मल कर ली जाएगी। जालना शहर में मजमूई तौर पर 64 बड़े नाले मौजूद हैं, जिनमें से अब तक तकरीबन 10 नालों की सफाई मुकम्मल कर ली गई है। आइंदा चंद दिनों में मज़ीद मशीनरी बढ़ाकर तमाम नालों की सफाई मानसून से कबल मुकम्मल करने का निशाना रखा गया है। ये तफसीलात म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर त्रिम्बक कुंबे ने दी हैं। जालना शहर में हर साल बारिश के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने के मसाइल पैदा हो जाते हैं। नालों में जमा शुदा कचरा, प्लास्टिक और तजावुज़ात की वजह से बारिश के पानी के बहाव में रुकावट पैदा हो जाती है। इस पस मंज़र में इंतज़ामिया ने मानसून से कबल बड़े नालों की सफाई का काम शुरू किया है। 2 मई से इस मुहिम का आगाज़ किया गया था और बड़े नालों से JCB के ज़रिए गाल और कचरा निकाला जा रहा है, जिसके लिए 5 JCB और 5 हाइवा गाड़ियाँ इस्तेमाल की जा रही हैं, जबकि निकाला गया कचरा फौरी तौर पर शहर से बाहर मुंतकिल किया जा रहा है। इंतज़ामिया के मुताबिक जालना शहर में मजमूई तौर पर 64 बड़े नाले हैं, जिनमें से तकरीबन 10 नालों की सफाई मुकम्मल हो चुकी है। बाकी नालों की सफाई तेज़ी से जारी है और आने वाले दिनों में मज़ीद मशीनरी शामिल करके काम की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर त्रिम्बक कुंबे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मानसून से पहले पहले तमाम बड़े नालों को मुकम्मल तौर पर साफ़ करने का निशाना मुकर्रर किया गया है, ताकि शहरियान को पानी जमा होने, बदबू और सेहत के मसाइल का सामना न करना पड़े। जालना शहरामध्ये साधारणतः एकूण मोठे नाले हे 64 नाले आहेत। त्या 64 नाल्यांचं आपण डिवायडेशन आता सध्या तरी आपल्याकडं 5 JCB आणि 5 हायवा ही यंत्रसामुग्री आपण लावली असून आणि त्या त्या एरियानुसार त्या त्या SI कडे आपण त्या त्या JCB आपण पुरवठा केलेले आहोत। आता आमचे माननीय सहाय्यक आयुक्त आणि आम्ही सतत त्याचा आढावा घेत असतो। आता हे मागील 2 तारखेपासून सदरची ही मोहीम सुरू करण्यात आलेली आहे। तर साधारणतः 64 नाल्यांपैकी 10 नाल्यांचं जवळपास 70 ते 80% काम पूर्ण झालेलं आहे आणि यातच आपण आणखी यंत्रसामुग्री वाढवून 2 दिवसात येणाऱ्या म्हणजे मान्सून पूर्व पावसाळ्यापूर्वीच अपन ये सर्व नाले साफ सफाई करून घेणार आहोत। शहर में पानी के लिए मची हाहाकार को देखते हुए मेयर समीर राजूरकर ने गुज़िश्ता रोज़ मुताल्लिक़ा अफसरान की एक अहम मीटिंग तलब की और तमाम कामों का जायज़ा लेने के बाद उन्हें हिदायत दी कि 900 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन को पूरी सलाहियत के साथ शुरू किया जाए। पानी सप्लाई सिस्टम का जायज़ा लेने के लिए एक अहम मीटिंग मेयर समीर राजूरकर की सदारत में गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद की गई। इस मौके पर डिप्टी मेयर राजेंद्र जंजाड़, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अनिल मकरिये और म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे भी मौजूद थे। मीटिंग में ओहदेदारान ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की तैयार करदा 900 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन को मुकम्मल सलाहियत के साथ फ़आल करने पर खुसूसी जोर दिया। इस वक्त शहर को मिलने वाली 155 MLD पानी सप्लाई में पाइपलाइन के मुकम्मल तौर पर शुरू होने के बाद कम से कम 17 MLD पानी का इजाफा होगा, जिससे शहर में पानी की किल्लत में नुमायां कमी आने में मदद मिलेगी। इसके अलावा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के अफसरान को आपसी हम आहंगी के साथ काम करने की हिदायत भी दी गई। शहर के हर जोन के मुताबिक पानी की तकसीम का अलग चार्ट तैयार करके पेश किया जाए और हर सब इंजीनियर अपने लाइनमैन पर मुअस्सर निगरानी रखे, इस तरह की हिदायत भी दी गई। अगर तकनीकी ख़राबी या पाइपलाइन फटने की वजह से पानी की फराहमी मुतासिर हो जाए तो उसे बहाल करने में कितना वक्त लगेगा, इसकी दुरुस्त मालूमात मुताल्लिक़ा अफसरान की जानिब से वक्त पर कारपोरेटर्स को दी जाए।
یہ بھی میٹنگ میں واضح کیا گیا۔ جن علاقوں میں فیڈر لائن سے براہ راست نل کنیکشن لیے گئے ہیں وہاں ضرورت کے مطابق کراس کنیکشن کر کے تمام علاقوں کو یکساں اور باقاعدہ پانی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے مناسب منصوبہ بندی کی جائے۔ اس سلسلے میں تفصیلی رپورٹ آئندہ ہفتے پیش کرنے کی ہدایت بھی متعلقہ افسران کو دی گئی۔ लाईट जर सप्लाय रेग्युलर राहिला तर आपला 100 HP चा पंप चालवून आपल्याला डे कमी करता येईल. म्हणजे N5च्या टाकीहून मरीमाता मरीमाताचा तुमचा लाईट जर गेली नाही तर नाही गेली चालू शकतो. त्यांची लेवल किती नाही ते 10% तुम्ही जे म्हटले कोणत्या एरियाला फायदा झाला तर तुम्ही म्हटले 20 MLD पाणी वाढल्यानंतर दोन चार सांगा नाही 10% कुठं वाढलं 2-4 ला वाढलं सर. 2-4 5 आपले डे कमी झाले तिकडचे. मागे आपण 5 6 दिवशी देतो आता 5 दिवशी कंटिन्यू देतो सर. 2-4 किती 6 दिवस होता मागच्या वर्षी 6 होता आता 5 दिवशी देतो. 20% पाणी जे वाढलं नाही ते प्रत्येक झोनमध्ये त्याचा फायदा कोणत्या झोनला शिडकोला झाला झाला शिडको एरिया झाला सर आपल्या. बस बाकी कुठं नाही झालं नाही बाकी नाही. आमच्या झाल्या थोडा कोण झाला काल तर सिडको सगळे लोक आले होते माझ्याकडे. आता हे 2-3 दिवस मध्ये N5 ला किती टँकर चालतात तुमच्या किती काय चालतात N5 चं काय N5 च्या टाकीवर टँकर किती आहेत किती चालतात किती लोकांना जातात सांगा ना उत्तर कोण आहे तिथं आणि कोणाकडे N5 245 ते 250 N5 ला तुम्ही बसतात ना कोण ही बसत नाही सर. माहिती जी आमच्याकडे ग्रुपमध्ये येते त्याच्यावर बसतो. तुम्ही बघत नाही ना ते घरून बसून करतात का मग तुम्ही घरून बसून जातो ना सर. नियमित नाही ते तुमचं नाव काय आहे तुमचा परिचय द्या पहिले. किरण कांडे. हाँ तुमची बार कंप्लेंट है माझ्याकडे तुम्ही प्लास्टिक आलूदगी पर काबू पाने के लिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने अपनी मुहिम तेज़ कर दी है, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ छावनी इलाके में कार्रवाई की गई और 90 किलो ममनुआ प्लास्टिक ज़ब्त किया गया। साथ ही मुतालिका कारोबारी से 5,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। ये कार्रवाई म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे की रहनुमाई और डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर नंदकिशोर भोंबे की निगरानी में अंजाम दी गई। वाज़ेह है कि शहर में ममनुआ प्लास्टिक के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सख्त मुहिम चलाई जा रही है। इस मुश्तरका कार्रवाई में महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की फील्ड ऑफिसर दीपाली लोखंडे, छावनी बोर्ड के सफाई इंस्पेक्टर संतोष बंसीले, मिलिंद ढाकने, नंदू देवरे, विनोद मगरे और हर्षल कावत भी मौजूद थे। इसके अलावा औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नागरी मित्र पथक के देवीदास ससुर, स्वर्ण सिंह परदेसी, बालाजी साबड़े और जनार्दन साबड़े ने भी इस मुहिम में अहम रोल अदा किया। डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर नंदकिशोर भोंबे ने अपील की है कि ममनुआ प्लास्टिक का ज़ख़ीरा फ़रोख्त या इस्तेमाल करने वालों के ख़िलाफ़ आइंदा भी इसी तरह से सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, लिहाजा शहरियान और ताजिर इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। म्यूनसिपल इंतज़ामिया से मौसूल इत्तला के मुताबिक नागरी मित्र पथक के अहलकार गश्त कर रहे थे कि उन्हें इत्तला मिली कि कुछ अफराद छावनी इलाके में ममनुआ प्लास्टिक फ़रोख्त करने के लिए आ रहे हैं। दस्ते ने फौरी तौर पर इसकी इत्तला महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और छावनी बोर्ड इंतज़ामिया को दी। इत्तला मिलते ही तीनों इदारों ने फौरी मुश्तरका कार्रवाई की। छावनी बोर्ड की जानिब से 90 किलो प्लास्टिक ज़ब्त किया गया और मुतालिका अफराद पर जुर्माना भी आयद किया गया। नागरी मित्र पथक की बरवक्त चौकसी की वजह से ही इतना बड़ा ज़ख़ीरा ज़ब्त करना मुमकिन हो सका। शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है, जिसके तहत मेडिकल बायोवेस्ट को महफूज तरीक़े से ठिकाने लगाने की बजाय उसे कचरा गाड़ी में डालने वाले एक निजी अस्पताल पर 25,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एड़गी की रहनुमाई में शहर में सफाई और कचरा इंतज़ामिया के क़वानीन के सख्त निफाज पर जोर दिया जा रहा है। एक संगीन वाक़े में जोन नंबर 7 के गजानन महाराज मंदिर के सामने वाक़े चैतन्य हाउसिंग सोसाइटी के मौली हॉस्पिटल ने ख़तरनाक बायोमेडिकल कचरा कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए आम कचरे में फेंक दिया, जिसका इंकशाफ सैनिटरी इंस्पेक्टर ने किया। इस लापरवाही के सबब डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर नंदकिशोर भोंबे की हिदायत पर मुतालिका अस्पताल पर 25,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। इस अस्पताल के कचरे में इंजेक्शन और सिरिंज जैसे ख़तरनाक मवाद पाए गए, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। कार्रवाई सफाई इंस्पेक्टर ओम बड़े और नागरी मित्र पथक के राव साहब इधाते और संतोष नौगिरे ने अंजाम दी।
हुकूमत हिंद के बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के मुताबिक इस किस्म का कचरा खुले में या आम कचरे में फेंकना ममनू है। ऐसे ख़तरनाक फुजले की वजह से कचरा संभालने वाले मुलाजमीन को भी शदीद चोट या मुतादी बीमारी का ख़तरा लाहक हो सकता है। इसलिए इस तरह की लापरवाही मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। इस मामले में मुताल्लिक़ा अस्पताल को सख्त वार्निंग दी गई, जबकि शहर के तमाम तिब्बी इदारों से अपील की गई है कि किसी भी किस्म का बायोमेडिकल कचरा सड़कों पर या आम कचरे में ना फेंका जाए। ऐसा कचरा सिर्फ मजाज या बायोमेडिकल वेस्ट जमा करने वाली गाड़ी के हवाले करना लाजमी है। बसूरत दीगर आइंदा भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सड़क हादसात को रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट मकामात के ख़ात्मे के लिए ठोस मनसूबाबंदी की जाए और तमाम महकमे मिलजुल कर इस पर अमल करें। ये हिदायत ज़िला कलेक्टर विनय गौड़ा जीसी ने डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की मीटिंग में दी। डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की मीटिंग आज ज़िला कलेक्टर दफ्तर में मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत ज़िला कलेक्टर विनय गौड़ा जीसी ने की। इजलास में पुलिस सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनय कुमार राठौड़, इलाकाई ट्रांसपोर्ट ऑफिसर विजय काठोले, मुख्तलिफ महकमों के इंजीनियर्स और सेव लाइफ फाउंडेशन के नुमाइंदे शरीक हुए। ज़िला कलेक्टर विनय गौड़ा ने हिदायत दी कि औरंगाबाद ज़िले के तमाम हादसात से मुतासरा मकामात यानी ब्लैक स्पॉट्स की निशानदही करके वहाँ तामीराती तब्दीलियाँ, रहनुमाई बोर्ड, इंतबाही साइन बोर्ड, सड़क पर ज़रूरी मार्किंग और दीगर हिफाजती इक़दामात फ़ौरी तौर पर किए जाएँ। उन्होंने कहा कि ज़िला भर के स्कूलों और कॉलेजेस में पूरे तालीमी साल के दौरान रोड सेफ्टी से मुतालिक बेदारी मुहिम चलाई जाए और गाड़ी मालिकान व ड्राइवर्स में भी शऊर उजागर किया जाए। ज़िला कलेक्टर ने मज़ीद कहा कि सड़कों पर मौजूद तमाम स्पीड ब्रेकर्स तयशुदा उसूलों के मुताबिक होने चाहिए। ज़रूरत के मुताबिक जदीद कैमरे और स्पीड मॉनिटरिंग मशीनें नस्ब की जाएँ। साथ ही हादसात के मकामात की जोग्राफियाई मालूमात मुताल्लिक़ा इदारों को फराहम करके मोबाइल के ज़रिए ड्राइवर्स को पेशगी इंतबाह देने के इक़दामात भी किए जाएँ। उन्होंने सड़क हादसात में ज़ख्मी अफराद को बरवक्त इलाज फराहम करवाने पर ज़ोर देते हुए कहा कि 108 एम्बुलेंस सर्विस को मुकम्मल तौर पर मुस्तैद रखा जाए और तमाम मुताल्लिक़ा महकमे मुश्तरका तौर पर मौसर इक़दामात करें। ज़िला कलेक्टर विनय गौड़ा ने ये भी हिदायत दी कि जहां हादसात पेश आते हैं वहां पुलिस, ट्रांसपोर्ट और पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट के अफसरान मुश्तरका मुआयना करके हादसात की वजूहात तलाश करें और उनके हल के लिए फौरी तजावीज़ पेश करें। म्यूनिसिपल हेल्थ कमेटी की चेयरपर्सन सुनीता सोलुंके ने अपने ओहदे का चार्ज संभालने के बाद शहरियान को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलतों का तफसीली जायज़ा लेने के बाद बताया कि शहरियान को तिब्बी सहूलतें बेहतर तरीके से फराहम करने के लिए उसमें कई सतह पर तब्दीलियां करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इसी ज़िमन में जल्द ही हेल्थ कमेटी की एक मीटिंग मुनक़िद की जा रही है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हेल्थ कमेटी की चेयरपर्सन सुनीता साळुंके ने अपने ओहदे का चार्ज संभालने के बाद शोबे सेहत के काम का तफसीली जायज़ा लिया। इस दौरान शहरियान को दी जाने वाली तिब्बी सहूलतें, सफाई सुथराई, दवाखानों की सूरत हाल, अमले की दस्तियाबी और दीगर बुनियादी उमूर का मुआयना किया गया। सुनीता साळुंके ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में शोबे सेहत की खिदमात में कई अहम तब्दीलियाँ और बेहतरियाँ करने की ज़रूरत महसूस की जा रही है ताकि शहरियान को बेहतर और मेयारी तिब्बी सहूलतें फराहम की जा सकें। उन्होंने मज़ीद कहा कि शहर में सफाई, बीमारियों की रोकथाम, अस्पतालों की कारकर्दगी और अवामी सेहत से मुताल्लिक़ दीगर मसाइल पर जल्द ही हेल्थ कमेटी की खुसूसी मीटिंग तलब की जाएगी। इस मीटिंग में मुख्तलिफ तजावीज़ और मंसूबों पर तबादला ख्याल करके मुअस्सर फैसले किए जाएंगे। सुनीता सोळुंके ने यकीन दिलाया कि शहरियों की सेहत और बेहतरीन तिब्बी सहूलतों को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी और शोबे सेहत की कारकर्दगी मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात किए जाएंगे। सध्या परिस्थितीत महानगरपालिकेअंतर्गत येणारे जे दवाखाने आहे ते व्यवस्थितरित्या चालू आहेत। तिथे शक्य तेवढ्या सुविधा औषधांच्या म्हणा किंवा बाकीच्या लॅब टेस्टिंग आहे त्या पण चालू आहेत। पूर्णतः रुग्णांना चांगल्या प्रकारे सुविधा दिल्या जाते। अगदी म्हणजे डॉक्टर्स कमी असतात। आपल्याकडे आपण कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसवर डॉक्टर अपॉइंट करतोय। प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या गुरुवारी त्यांचे इंटरव्ह्यू चालू असतात।
ज्या जागा रिक्त आहेत त्या भरण्याचा प्रयत्न चालू आहे. त्या इंटरव्ह्यू थ्रू जे चांगले डॉक्टर मिळत आहेत त्यांना आम्ही तिथे प्लेस करतो. येण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल की शक्यतो जे परमनंट डॉक्टर्स आहेत त्यांची संख्या वाढवण्यात यावी, जेणेकरून ते हॉस्पिटल चांगल्या प्रकारे चालवतील आणि अजून सहाय्य रुग्णांना मिळेल. नाही, ह्यावेळेस पूर्णतः वॅक्सिनची अमाऊंट आहे, पूर्णतः संख्येमध्ये आहे वॅक्सिन, असं काही होणार नाही ह्यावेळेस. आपल्याकडे आपण पूर्ण सगळ्या आरोग्य केंद्रांमध्ये ORSचे सॅचेट्स मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध केलेले आहेत आणि रुग्णांना तिथे सांगतोय आपण काळजी घ्या, योग्य भरपूर प्रमाणात पाणी प्या, फ्रूट्स भरपूर खा आणि विशेषतः उन्हाच्या वेळेमध्ये बाहेर पडू नका शक्यतो, जेणेकरून हीट स्ट्रोक आपल्याला स्टार्ट करता येईल. नेक्स्ट वीकमध्ये अपेक्षित आहे, म्हणजे प्रयत्न करतोय आम्ही. जालना ज़िले के मछेंद्रनाथ चिंचोली ग्राम पंचायत की करारदाद में घरकुल मंजूरी के नाम होने के बावजूद 22 अफराद को इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिल पाया है। ये इल्ज़ाम RPI आठोले ग्रुप की जानिब से लगाया गया है, जिसके लिए मज़कूरा तंजीम की जानिब से ज़िला परिषद दफ्तर पर 11 मई से भूख हड़ताल जारी है। इस एहतजाजी मकाम पर आज पार्टी के मराठवाड़ा सदर एडवोकेट ब्रह्मानंद चौहान ने दौरा किया और इंतज़ामिया पर संगीन सवालात उठाए। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने मुतालिका ग्राम सेवक पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए और दावा किया कि हर घरकुल के बदले 15,000 रुपये की मांग की जा रही है। उन्होंने इस मामले की इंक्वायरी करके मुतालिका ग्राम सेवक को फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा भी किया। दूसरी जानिब मछेंद्रनाथ चिंचोली की ख़वातीन ने भी एहतजाजी मकाम पर पहुंचकर ग्राम सेवक पर पैसे मांगने के संगीन इल्ज़ामात आयद किए, जिससे पूरे इलाके में हलचल पैदा हो गई और मुस्तैक़ीन में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है। अब इस मामले में ज़िला परिषद इंतज़ामिया क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है और क्या कार्रवाई की जाती है, इस पर सबकी नज़रें मरकूज़ हैं। 11 तारखेपासून जिल्हा परिषदेच्या समोर रिपब्लिकन महिला आघाडीचं उपोषण चालू आहे। आमचे खोडवे मॅडम ह्या ज्या महिला आघाडीच्या तालुका अध्यक्ष आहेत, त्यांच्या नेतृत्वाखाली उपोषण चालू आहे। त्यांची चिंचोली येथील रमाई घरकुल योजनेमधल्या घरकुल मंजुरी करण्याच्यासाठीची मागणी आहे। त्यांच्यातल्या पात्र असलेल्या 22 लोकांना ग्रामपंचायतीच्या ठरावामध्ये नावं असताना सुद्धा डावलण्याचं कारण यांचं म्हणणं आहे की त्यांनी 15,000 रुपये मागितले होते, त्यामुळे आम्हाला आम्ही दिले नाहीत म्हणून आमचे नावं डावललेत। त्याच्यात बोगस 29 नावं आहेत, त्याची आम्ही मागणी केली होती। त्याची समाज कल्याणाला दखल झाली, गट विकास अधिकाऱ्याकडे समाज कल्याण अधिकाऱ्यांची नाव रद्द करण्याचं पत्र सुद्धा दिलं आहे। मागणी आज अशी आहे की या लाभार्थी ठरावामध्ये असलेल्या 22 लोकांची घरकुल मंजूर करावेत आणि जे बोगस आहेत ते रद्द करावेत। ग्रामसेवकांना बोगस जी कारवाई केली, जो ठराव घेतला आहे त्या ग्रामसेवकाला निलंबित करावा आणि जिल्हा परिषदेच्या सीओनं तत्काळ यामध्ये लक्ष घालावा। आणि त्यासाठी महिला आघाडीचं रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीनं उपोषण चालू आहे। आणि रमाई आवास योजनेच्या घरकुलासाठी आम्ही जिल्हा परिषदेला उपोषणाला बसलो आहेत। 11 तारखेपासून तर आज 13 तारखेपर्यंत उपोषणाला बसले, 14 तारखेपर्यंत उपोषणाला बसलेला आहोत आणि त्या यादीमध्ये नावं असताना सुद्धा आमच्या जाणून ते नावं गाळलेले आहेत आणि आम्हाला 15,000ची मागणी केली होती, ते आम्ही पैसे न दिल्यामुळे ते आमचे नावं गाळले गेलेले आहेत। असंच आम्ही पंचायत समितीला पण उपोषणाला बसलो होतो, त्यावेळी नुसतं आम्हाला असंच सांगितलं की हां आम्ही यांचे नावं रद्द करू, ते नावं रद्द केले गेलेले नाहीत। मग आम्हाला त्यांनी फक्त अशी एक लेटर दिलं होतं हे नावं रद्द झालेत म्हणून, पण तरी ते लेटर रद्द केलेले नाहीत। त्यामुळे आम्ही परत जिल्हा परिषदेला उपोषणाला बसलो आहोत। आज 4 दिवस झाले आमचे उपोषणाला बसलेले। काय मागणी आता आमचे घरकुल जे आहेत आमच्या 22 लोकांचे तेवढे मंजूर करावेत, एवढीच आमची इच्छा आहे। कानून साज काउंसिल के रुकन नामजद होने के बाद MLC अंबादास दानवे ने अपने ओहदे का हलफ लिया। महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल पर बिला मुकाबला मुंतखब होने के बाद शिवसेना लीडर अंबादास दानवे ने आज रुकनीत का हलफ लिया। ये हलफ बर्दारी तकरीब कानून साज काउंसिल के चेयरमैन राम शिंदे की मौजूदगी में मुनक़िद हुई। इस मौके पर अंबादास दानवे ने दस्तूर हिंद को गवाह मानते हुए अवामी खिदमत के लिए हमेशा पाबंद अहद रहने का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ने उन पर जो एतमाद ज़ाहिर किया है और जो जिम्मेदारी उन पर सौंपी गई है वो उसे पूरी वफादारी और ईमानदारी के साथ अदा करेंगे। अंबादास दानवे ने इस मौके को अपनी अवामी और ज़ाती ज़िंदगी का नहायत खुशी और जज्बात से भरपूर लम्हा करार दिया। क्लीन सिटी ग्रीन सिटी प्रोग्राम के तहत घन कचरा प्रोजेक्टिव नंद किशोर भोंबे ने आज मुकुंदवाड़ी भाजी मंडी का अचानक दौरा किया।
और वहां फैली गंदगी और गिलाज़त पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए मुतल्लिका तमाम दुकानदारों पर फ़ीकस 1000 रुपयों का जुर्माना आयद किया। मुकुंदवाड़ी मंडी में जगह जगह फैली गंदगी पर घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ नंद किशोर भोंबे ने सख्त रवैया इख्तियार किया। अपनी अचानक विजिट के दौरान उन्होंने अतराफ के इलाकों में गंदगी का साम्राज्य देखकर अफसरान और ताजिरों को सख्त फटकार लगाई। इस दौरान मंडी में सफाई का मुनासिब इंतज़ाम न होने पर मुतल्लिका ताजिरों पर फ़ी ताजिर 1000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। साथ ही तमाम दुकानदारों और ताजिरों को फौरी तौर पर सफाई बरकरार रखने की हिदायत दी गई। नंद किशोर भोंबे ने कहा कि शहर को साफ सुथरा और सरसब्ज बनाने के लिए इंतजामिया मुसलसिल मुहिम चला रहा है और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ आइंदा भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। ज़िला उस्मानाबाद के तालुका वाशिम में हुई बेमौसमी बारिश और ज़ालाबारी ने मकामी साकिनान को हैरान और परेशान कर दिया। ज़िला उस्मानाबाद के तालुका वाशी में गुज़िश्ता सुबह ही से शदीद गर्मी और हब्स में इजाफा हो गया था, जिससे लोग बेहाल हो रहे थे और इसी दौरान बिजली भी गायब थी। दोपहर में अचानक तेज़ हवाओं के साथ शहर में ज़ालाबारी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी नज़र आने लगा। नालियां और गटर बारिश के पानी से साफ़ हो गईं। खेतों में मौजूद प्याज और जवार का कड़वा भीग गया, जबकि आम के दरख्तों के नीचे कच्ची कैरियों की बड़ी तादाद गिरी हुई दिखाई दी। इस बारिश से टूटे हुए गन्ने की फसल को फ़ायदा पहुंचा है। मजमूई तौर पर इस बेमौसमी बरसात ने शदीद गर्मी से परेशान लोगों को ठंडी और खुशगवार हवा का एहसास दिलाया। बुखाराती अमल में तेज़ी के सबब जायकवाड़ी डैम में पानी की सतह में बड़े पैमाने पर कमी दर्ज की गई है। पैठन के जायकवाड़ी डैम में गुज़िश्ता एक माह के दौरान पानी के ज़ख़ीरे में तकरीबन 10% की कमी रिकॉर्ड की गई है। 13 अप्रैल को डैम में पानी का ज़ख़ीरा 56.04% था, जो 13 मई तक कम होकर 46.14% रह गया। शदीद गर्मी, बढ़ता हुआ बुखाराती अमल और पानी के इस्तेमाल में इजाफा इस कमी की अहम वजूहात बताई जा रही हैं। डैम के मेन सेफ्टी वॉल पर नस्ब पानी की सतह नापने वाले आले के मुताबिक हर हफ्ते औसतन 3% पानी कम हो रहा है। इस वक्त बाई नहर से ज़रई आपाशी के लिए 2200 क्यूसेक्स की रफ्तार से पानी छोड़ा जा रहा है। जायकवाड़ी प्रोजेक्ट से औरंगाबाद, जालना, अंबड़, पैठन, शेवगांव, पाथरडी और गंगापुर समेत 253 देहातों के तकरीबन 52 लाख अफराद को पीने के पानी की फराहमी की जाती है। इसके अलावा बिड़किन, शेंद्रा, DMIC, वालू, चिकलथाना और चीतेगांव सनती इलाकों समेत 6 शुगर फैक्ट्रियों को भी पानी फराहम किया जा रहा है। इस हवाले से डैम के ब्रांच इंजीनियर मंगेश शेलार ने बताया कि इस साल बुखाराती अमल ज़्यादा होने और पानी के इस्तेमाल में इजाफा होने की वजह से ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं। आपण बघत आहात जायकवाडी धरणामध्ये सद्यस्थितीत 901.5 दलगमी इतका पाणी साठा उपलब्ध असून तो जवळपास 41.53% इतका आहे। मागच्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये 8.77% इतका पाणी साठा आपल्याकडे जास्त आहे। सद्यस्थितीत जायकवाडी धरणामध्ये सरासरी 2 दलगमी इतकं बाष्पीभवन दररोज पाण्याचं होत आहे। हे खूप मोठ्या प्रमाणात होत आहे। उन्हाचा तडका असेल किंवा तापमान जे वाढलेलं आहे त्यामुळे बाष्पीभवन देखील यावर्षी वाढलेलं आहे मागच्या वर्षीच्या तुलनेत। तसेच सध्या स्थितीत पाणी वापर जो आहे आपला दररोजचा तर तो 9 दलगमी त्याच्यामध्ये सिंचनासाठी असेल, औद्योगिकरणासाठी असेल, पिण्यासाठी असेल आणि बाष्पीभवन वगैरे आणि बॅकवॉटरचं सिंचन वगैरे असेल। तर एवढ्यासाठी सरासरी 9 दलगमी इतका पाणी साठा आपला दररोज पाणी वापर होत आहे। धरणातील उपलब्ध पाणी साठा याचा विचार करता पुढील 100 दिवस पुरेल इतका पाणी साठा आपल्याकडे आहे जर 9 दलगमी इतका पाणी वापर राहिल्यास। परंतु जायकवाडी विभागामार्फत जे डाव्या आणि उजव्या कालव्याचे जे आवर्तन सुरू आहेत तर याच्यामध्ये कमीत कमी पाणी वापरामध्ये जास्तीत जास्त सिंचन करण्याचा जायकवाडी विभागाचा प्रयत्न आहे। याच्यामध्ये खालील भागात होत असलेले ज्या चाऱ्या आहेत त्यांचे आवर्तन लवकरात लवकर घेऊन जो पाणी वापर होत आहे तर आपण त्याद्वारेही पाणी वाचवण्याचा प्रयत्न करीत आहोत। त्यांचं सिंचन झाल्यानंतर आपण धरणातून जो सोडण्यात येणारा पाणी आहे ते देखील आपण कमी करणार आहोत, जेणेकरून भविष्यामध्ये आपल्याला जास्त दिवसाकरता पाणी साठा उपलब्ध राहील। या पद्धतीने जायकवाडी धरणावरील सर्व अधिकारी कर्मचारी तसेच जायकवाडी विभागातील सर्व अधिकारी कर्मचारी प्रयत्न करत आहोत। किती दिवस पाणी साठा हा पुरेल? सद्यस्थितीत उपलब्ध असलेला पाणी साठा हा
आजच्या याच्यानुसार वापरानुसार जर विचारात घेतला तर किमान 100 दिवस पाणी साठा पुरेल एवढा पाणी साठा आहे. सिंचन, बिगर सिंचन, औद्योगिक सर्व पाणी वापर तसेच बाष्पीभवनचा वापर पकडता. नाव काय? मंगेश शेलार, शाखा अभियंता, जायकवाडी धरण. तालुका पैठन में एक अनोखा और दिल को छू लेने वाला मंजर देखने को मिला, जहां 20,000 नोटबुक्स के ज़रिए छत्रपति संभाजी महाराज का खाका तैयार किया गया। धर्मवीर संभाजी महाराज जयंती के मौके पर रुकन असेंबली विलास भुमरे के तसव्वुर से पैठन में एक अनोखा और हौसला अफजा प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम के तहत तकरीबन 20,000 नोटबुक्स के इस्तेमाल से छत्रपति संभाजी महाराज का अजीमुश्शान खाका तैयार किया गया, जो अवाम और तलबा के लिए ख़ास कशिश का मरकज़ बना हुआ है। इस मौके पर विलास भुमरे ने कहा कि इस मंसूबे का मकसद तलबा में तारीख़ के बारे में फ़ख्र, हुब्बुल वतनी और अखलाक़ी इक़दार को फ़रोग़ देना है। तालीमी इस्तेमाल की नोटबुक से तैयार किया गया ये बड़ा फ़नपारा लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। ये प्रोग्राम विलास भुमरे पाटिल की जानिब से मुनक़िद किया गया था, जबकि इस फ़नपारे को आर्टिस्ट अदिश पघल ने तैयार किया। इसमें शुभीकरण की मेहनत भी शामिल रही। तकरीब में बड़ी तादाद में तलबा, नौजवान और शहरी मौजूद रहे, जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर तहसीलदार ज्योति पवार, चीफ ऑफिसर डॉक्टर पल्लवी अंभुरे, पुलिस इंस्पेक्टर महादेव गोमारे और मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। इस अजीमुश्शान खाके का इफ्तिताह रुकन असेंबली विलास भुमरे के हाथों किया गया। आपले स्वराज्याचे रक्षक, धर्मरक्षक, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांची जयंती आहे। आज या जयंतीनिमित्त सर्व समाज बांधवांना, सर्व जनतेना या ठिकाणी या जयंतीनिमित्त शुभेच्छा देईल। आणि ही जयंती साजरी करत असताना या ठिकाणी आपल्या जिल्ह्याचं जे औरंगाबाद नाव होतं याचं नामकरण छत्रपती संभाजीनगर झालं आणि त्यानंतर आज पहिल्यांदा आपण ही संभाजी महाराज जयंती या ठिकाणी साजरी करतोय। जालना म्यूनसिपल कमिश्नर अंजलि शर्मा की हिदायत पर गैर कानूनी तरीके से चलाई जा रही चिकन और मटन की 30 दुकानों को मुनहदिम कर दिया गया। अंबड़ रोड इलाके में मुताद्दिद दुकानें बगैर इजाज़त और क़ानून की खिलाफ वर्जी करते हुए चलाए जाने की शिकायत इंतज़ामिया को मौसूल हुई थी, जिसके बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जालना ने बराह रास्त गैर कानूनी कब्ज़ात हटाओ मुहिम शुरू करते हुए बुलडोज़र की मदद से इन दुकानों को मिसमार कर दिया। इस कार्रवाई के बाद इलाके में कुछ देर के लिए कशीदगी का माहौल पैदा हो गया था, ताहम इंतज़ामिया ने वाज़ेह किया है कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ आइंदा भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। दूसरी जानिब इस अचानक कार्रवाई पर कई दुकानदारों ने नाराज़गी जाहिर की है और कुछ ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें पहले से कोई इत्तला नहीं दी गई। जालना शहर में तजावुज़ात और गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सख्त मुहिम जारी है और आने वाले दिनों में भी मज़ीद कार्रवाई का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जालना शहर महानगरपालिकेच्या अंतर्गत गेल्या 4-5 दिवसापासून माननीय आयुक्त अंजली शर्मा यांच्या आदेशान्वये तसंच उपायुक्त त्र्यंबकराव कांबळे, त्याच्यानंतर आमचे चिकन मटनचे जे प्रमुख आहेत अमजद भाई आणि आमचे सगळे SI आज नूतन वसाहत अंबड रोड या ठिकाणी अनेक दिवसापासून चर्चेत असलेल्या चिकन मटनच्या अवैध दुकानं ज्या आहेत, ज्यानेकडून कुत्र्याचा हैदोस वाढलेला आहे आणि गावामध्ये बेवारस कुत्र्यांचा जे हे झालेला आहे, त्यामुळे अनेक चिमुकल्याचा एक छोट्या चिमुकलीचा सुद्धा जीव गेला, ज्यामुळे बरेच आंदोलन उपोषण झाले आणि बरेच महानगरपालिकावर यावेळेस हे झालेलं होतं। अशा परिस्थितीत आज आदेश माननीय आयुक्त यांनी दिलेला आहे आणि त्या अनुषंगाने या अतिक्रमणाच्या कारवाईमध्ये चिकन मटन या ठिकाणी असलेल्या अंबड रोड या ठिकाणी जवळपास 25 ते 30 दुकानं असून त्या संपूर्ण निष्कासित करण्याचे आदेश हे माननीय आयुक्त यांनी दिलेले आहेत आणि सदर कारवाई आमचे अमजद खान यांच्या नेतृत्वात तसेच आमच्या मार्गदर्शन श्री उपायुक्त त्र्यंबक कांबळे यांच्या नेतृत्वात सर्व SI टीम या ठिकाणी चिकन मटनचे अवैध दुकाने हे निष्कासित करण्याचं काम या ठिकाणी महानगरपालिकेच्या वतीने चालू आहे। संजरपुर इलाके में लक्ष्मीबाई राव साहब पवार के खेत में मौजूद ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने के सबब खेत में रखा सामान जलकर खाक हो गया। तालुका गंगापुर के संजरपुर इलाके में लक्ष्मीबाई राव साहब जगताप के गट नंबर 24 में नस्ब बिजली के ट्रांसफार्मर में रगड़ पैदा होने के बाद शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे खेत में मौजूद स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम, PVC पाइप, अदरक की फसल, बाजरे का चारा और ड्रिप इरिगेशन जलकर तबाह हो गए। इस वाक़े के बाद तलाठी और तकनीकी माहिरीन ने मुश्तरका पंचनामा किया। मुतासरा किसान लक्ष्मीबाई जगताप ने मुतालबा किया है
कि महावितरण फौरी तौर पर नुकसान का मुआवजा अदा करे, बसूरत दीगर वो इंसाफ के लिए अदालत से रुजू करेंगी। इस मौके पर योगेश पवार, योगेश काकड़े, सचिन सोनोने, सीताराम जगताप, तुलसीराम जगताप, रामेश्वर साळुंके, गणेश चौधरी, अप्पा साहब शिंदे, अनिल कोळे, अमीन शेख और दीगर अफराद भी मौजूद थे। आम्ही संजरपूर गावातील रहिवासी आणि आमचा गट नंबर 24 आहे। त्या गट नंबरमध्ये 24 गट नंबर आहे आमचा आणि आमच्या DPचं तिथे शॉर्ट सर्किट झालं। मी त्या दिवशी बाहेर गावी होतो, पण इथं मग शॉर्ट सर्किट झाल्यामुळं आमच्या शेतीमध्ये बरंच काही जळून नुकसान झालेलं आहे। त्याच्यामध्ये आमच्या 30 एक शेळ्याचं नुकसान झालं आणि ठिबक वगैरे होतं ते बी नुकसान झालं। आमची काही अद्रक होती, त्या अद्रकीमुळं भरपूर नुकसान झालेलं आहे। आता काय करावं काय नाही अशी पंचायत झालेली। एक तर उत्पन्न येत नाही, आमचं शेती उपयोगी भानगडी, त्याच्यामध्ये आणखीन आमचं नुकसान होते। तर काय करावं असं शासनानं आम्हाला काहीतरी त्याचं सहकार्य करून MSCBनं त्याच्यामुळे जळीत झालेलं आहे आणि शासनानं आम्हाला त्याच्यामुळे मदत देऊन काहीतरी सहकार्य करावं, नाही तर आम्ही अन्यथा आम्ही न्यायालयात जाऊन ते 2-3 दिवस झाले मी बाहेर गावी असल्यामुळे मला काही सांगता यायचं नाही कधी झालं ते नाही। अजून तलाठी वगैरे कोणीच नाही आलं। हो, तलाट्याला कळवलं मी, आमचे योगेश भुई मालुंजाची, त्यांना कॉल केला होता, मला योगेश भाऊ आपलं असं नुकसान झालं, तेव्हा काही अडचण नाही म्हणे, आपण तलाठी साहेबांना बोलून तेवढं काहीतरी सहकार्य करू म्हणे, तुम्हाला जे नुकसान झालं ते भरपाई देण्याचा प्रयत्न करू असं बोलले। खबरें खत्म होने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र काबीना ने किए कई अहम फैसले, आबी ज़खायर, किसानों के लिए राहतकारी और बुनियादी ढांचे के लिए बड़े मुंसिबों को दिखाई हरी झंडी। पानी के लिए शहर में मचने लगा हाहाकार, खिल्लत पर काबू पाने मेयर ने बुलाई अहम मीटिंग। 900 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन पूरी सलाहियत से चलाने का दिया हुक्म, बिजली की आंख मुचली पर काबू पाने भी दी गई सख्त हिदायत। सड़क हादसात पर काबू पाने डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की अहम मीटिंग मुनक़िद, रोड सेफ्टी के लिए बनाया गया बड़ा एक्शन प्लान। ब्लैक स्पॉट खत्म करने और जदीद निगरानी निज़ाम नस्ब करने का मुताल्लिक़ा अफसरान को जिला कलेक्टर विनय गौड़ा ने दिया हुक्म। और जायकवाड़ी डैम में तेजी से कम होने लगी है पानी की सतह, बुखाराती अमल हुआ तेज और पानी के इस्तेमाल में भी हुआ इजाफा, मगर इत्मीनान बख्श मिकदार में मौजूद है पानी का ज़ख़ीरा। इंतज़ामिया और अवाम से पानी के इस्तेमाल में किफ़ायत करने की गई अपील। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।